Hello everyone, it's been quite a long time since I uploaded any video. Last time I remember I uploaded the video about section 161 of the Criminal Procedure Code 1973, section 161 examination of witnesses by police. So today let us try to learn a bit about the very next section, section 162, without wasting much time. Okay, so what I am going to do is I'm just going to read it word by word. It is not a very difficult section to understand, not a complicated language of this section. Okay, it is very simple to understand, but yes, it is very useful. Okay, and this section has got a very wide practical application. It is very important. Okay, the utility of this section is very high. Okay, so let us read this section. Okay, word by word. Section 162 CRPC 1973, statements to police not to be signed. Okay, use of statements in evidence. Now, subsection 1, no statement made by any person to a police officer in the course of investigation under this chapter shall, if reduced to writing, be signed by the person making it. Nor shall any such statement or any record thereof, whether in a police diary or otherwise, or any part of such statement or record, be used for any purpose, save as hereinafter provided at any inquiry or trial, in respect of any offence under investigation at the time when such statement was recorded, provided that when any witness is called for prosecution in such inquiry or trial, whose statement has been reduced into writing as aforesaid, any part of the statement, if duly proved by the prosecution, if duly proved, may be used by the accused, and with the permission of the court by the prosecution, to contradict such witness in the manner provided by section 145 of the Indian Evidence Act 1872. And when any part of such a statement is so used, any part thereof may also be used in the re examination of such witness, but for the purpose only of explaining any matter referred to in his cross examination. Subsection 2, nothing in this section shall be deemed to apply to any statement falling within the provisions of clause 1 of section 32 of the Indian Evidence Act 1872, or to affect the provisions of section 27 of that act. Now, an explanation: an omission to state a fact or circumstance in the statement referred to in subsection 1 may amount to contradiction in the same if the same appears to be significant and otherwise relevant, having regard to the context in which such omission occurs, and whether any omission amounts to a contradiction in the particular context shall be a question of fact. ओके, नाउ इन शॉर्ट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सेक्शन. इसका थोड़ा सा ऑपरेशन करते हैं, थोड़ी सर्जरी करते हैं. बहुत ज़्यादा डिटेल में जाता नहीं हूँ मैं. ओके, और आज भी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा. ओके, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेता, छोटा वीडियो अपलोड करने की कोशिश करता हूँ, जैसे 10 मिनट 15 मिनट. ओके, ताकि हम बेसिकली समझ जाएं कि सेक्शन है क्या, वो सेक्शन क्या क्या रहा है. ओके, और उसका यूज़ कब होता है और किस जगह पर होता है ख़ास तौर पर. सो धारा 162 जो है वो बहुत वाज़ेह तौर पर एक बात कह रही है कि जो स्टेटमेंट पुलिस रिकॉर्ड करती है, ओके, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन, अगर पुलिस कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रही है, ख़ास तौर पे द स्टेटमेंट दैट इज़ रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 161, ओके, पुलिस अगर कोई बयान ले रही है किसी विटनेस का धारा 161 के तहत, तो उस बयान का दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट, हाउ दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड, द यूटिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट, दैट इज़ व्हाट इज़ बीइंग एक्सप्लेन्ड इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन, कि किस तरह से हम जो उस बयान का यूज़ कर सकते हैं किसी इंक्वायरी में या ट्रायल में. दरअसल जो भी स्टेटमेंट आप पुलिस को देते हैं, ओके, कोई भी बयान अगर पुलिस के सामने जो है दिया गया है या पुलिस को दिया गया है, कोई भी स्टेटमेंट अगर पुलिस के सामने जो है दिया गया है, पुलिस ने रिकॉर्ड किया उसको, तो नॉर्मली उसकी यूटिलिटी ज़्यादा होती नहीं है. ओके, उसकी यूटिलिटी ज़्यादा होती नहीं, बहुत जो है कम यूटिलिटी उसकी होती है, बहुत कम जगह पर उसका इस्तेमाल होता है. जैसा कि इस सेक्शन में लिखा हुआ है कि किसी भी पर्पज़ के लिए जो है उस स्टेटमेंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते. ओके, वो कंक्लूसिव पीस ऑफ एविडेंस भी नहीं होता है. ठीक है, उसकी एविडेंशियरी वैल्यू बिल्कुल निल होती है, बहुत ही मिनिमम होती है, ना बराबर होती है एक तरह से. तो जो भी स्टेटमेंट आपने पुलिस को दिया है एज अ विटनेस, ओके, इन फ्रंट ऑफ पुलिस अगर कहा है या फिर पुलिस को बयान दिया धारा 161 के तहत, दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एनी पर्पज़. ओके, ये हुई एक बात. ओके,
और इसके पहले एक बात लिखी हुई है जो कि हेडिंग में ही लिखी हुई है कि स्टेटमेंट टू पुलिस नॉट टू बी साइंड। अगर किसी इंसान ने कोई बयान दिया धारा 161 में पुलिस को, तो वो स्टेटमेंट पर साइन नहीं करेगा। दैट स्टेटमेंट इज़ नॉट टू बी साइंड बाय द स्टेटमेंट मेकर। ओके, जो बयान दे रहा है उसका उस पर साइन करना मैंडेटरी नहीं है। ओके, ये ज़रूरी नहीं है। It is not required. The person who is making this statement in front of police, who is giving his statement as a witness in front of police or to the police under section 161, that particular statement is not to be signed by the statement maker. ठीक है, पुलिस कोई दबाव नहीं बना सकती, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकती कि सिग्नेचर करो। बहरहाल अगर गलती से, चूक से, अनजाने में अगर साइन हो भी गया है, ओके, मान लीजिए कि अनजाने में या गलती से जिसने बयान दिया है या फिर पुलिस ने साइन ले ही लिया उसका, तो बहरहाल इट इज़ नॉट गोइंग टू विशिएट दी प्रोसीडिंग। इन्वेस्टिगेशन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ओके, ऐसा नहीं कि आपने साइन कैसे करा लिया, पूरी की पूरी प्रोसीडिंग जो है वो विशिएट हो गई या नल डिक्लेयर कर दी गई, ऐसा नहीं है। ठीक है, नॉर्मली उस पर साइन करना नहीं है, पुलिस ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। ठीक है, और आप खुद ये जान लें, एक जो है कहते हैं ना कि लीगल नॉलेज के तौर पर कि भाई अगर आप बयान दे रहे हैं पुलिस को, तो यू शुड बी लाइक एजुकेटेड एनफ एंड शुड एजुकेट योर क्लाइंट, ओके, and the general public at large that any statement that you're giving to police under section 161, okay, that statement is not to be signed by the statement maker. Okay, उसको साइन नहीं करना है। और उस स्टेटमेंट की यूटिलिटी बहुत कम है, उसकी एविडेंशियरी वैल्यू ना बराबर है। ओके, उसका इस्तेमाल किसी पर्पस के लिए नहीं कर सकते एक्सेप्ट ना। प्रोविजो जो है इस सब सेक्शन में वो बता रहा है कि इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल आप कहाँ कर सकते हो। ओके, अगर कोई विटनेस, इफ़ एनी विटनेस is being called as a prosecution witness, okay, बात समझिएगा गौर से। अगर कोई गवाह प्रोसिक्यूशन का गवाह बनकर आ रहा है, a person who is coming as a prosecution witness, okay, then जो बयान उसने दिया है पुलिस को, okay, उस बयान का खंडन किया जा सकता है by the accused। जो डिफेंस है, जो अक्यूज्ड है, वो कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है इस स्टेटमेंट को, अगर कोई पर्सन एज अ प्रोसिक्यूशन विटनेस आ रहा है। तो प्रोसिक्यूशन की तरफ से अगर आप गवाह बनकर आ रहे हैं, तो जो डिफेंस है वो आपके स्टेटमेंट का खंडन कर सकता है। ओके, एंड बाय द परमिशन ऑफ द कोर्ट द प्रोसिक्यूशन। अगर प्रोसिक्यूशन कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहता है, क्योंकि इस स्टेटमेंट का सिर्फ कॉन्ट्रडिक्शन ही हो सकता है। ओके, जो स्टेटमेंट आपने पुलिस को दिया उसका खंडन ही किया जा सकता है। ठीक है, और खंडन करेगा कौन? अक्यूज्ड करेगा। ओके, कॉन्ट्रडिक्शन जो है स्टेटमेंट का वो अक्यूज्ड करता है, जो डिफेंस का लॉयर होता है। अगर प्रोसिक्यूशन खंडन करना चाहता है, इफ द प्रोसिक्यूशन वांट्स टू कॉन्ट्रडिक्ट द स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस, ओके, हु इज कमिंग एज अ प्रोसिक्यूशन विटनेस, देन द प्रोसिक्यूशन हैज़ टू टेक द परमिशन ऑफ द कोर्ट। भाई कॉमन सेंस है, प्रोसिक्यूशन ही क्यों जो है अपने विटनेस का खंडन करेगा? भाई अगर कोई इंसान प्रोसिक्यूशन विटनेस के तौर पर गया, तो भाई प्रोसिक्यूशन थोड़ी जो है खंडन करेगा, डिफेंस वाले ही ना खंडन करेंगे। तो कॉमन सेंस, इसमें कुछ भी बहुत ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, एक चोर है, उसने चोरी की। ठीक है, जिसके घर में चोरी हुई है, दो पार्टी है, ए जिसके घर में चोरी हुई, बी जिसने चोरी की। ठीक है, देयर आर टू पार्टीज, ए जिसने चोरी की, बी जिसके घर में चोरी हुई। ओके, तो बी प्रोसिक्यूशन हो गया। ठीक है, बी प्रोसिक्यूशन हो गया, सी प्रोसिक्यूशन विटनेस है। ठीक है, ए चोर है, बी जिसके घर में चोरी हुई, सी क्या है? प्रोसिक्यूशन विटनेस है। तो सी एज अ प्रोसिक्यूशन विटनेस जब कोर्ट में आकर कोई बात कहेंगे, तो उनकी बात का खंडन कौन करेगा? जो चोर होगा वो ना करेगा, चोर ही तो कॉन्ट्रडिक्ट करेगा ना। जो डिफेंस है, जो अक्यूज है बेसिकली, वही ना कॉन्ट्रडिक्ट करेगा। तो कॉमन सेंस यही कहता है, इसमें कुछ भी टेक्निकल नहीं है सच। ओके, तो स्टेटमेंट दैट इज गिवन टू द पुलिस अंडर सेक्शन 161, ओके, that can only be used for contradiction and that too by the accused if the person is coming as a prosecution witness। okay, अगर आप प्रोसिक्यूशन विटनेस के तौर पर आ रहे हैं, तो आपके स्टेटमेंट का यूज़ खंडन के लिए हो सकता है, और खंडित भी करेगा कौन? डिफेंस करेगा, जो अक्यूज्ड है। अगर प्रोसिक्यूशन खंडन करना चाहता है, तो कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। दैट इज ऑल टुगेदर द यूटिलिटी ऑफ द स्टेटमेंट दैट इज गिवन टू द पुलिस। ओके, नाउ देखिए, अब यहाँ पर बात हो रही है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और दूसरी बात हो रही है कि द स्टेटमेंट दैट इज़ गिवन टू पुलिस, सिर्फ जो आप स्टेटमेंट पुलिस को देते हैं, ठीक है, उसी पर बार है इस तरह का। जैसे फॉर एग्जांपल पंचनामा है। ठीक है, एक मिसाल दे रहा हूँ छोटी सी। अगर आप जो है किसी और के सामने, ओके, एक कहते हैं ना एक्स्ट्रा जुडिशियल स्टेटमेंट होता है, ठीक है, जो पुलिस के सामने या फिर कोर्ट में आपने नहीं कहा, किसी और के सामने, तो भाई इस स्टेटमेंट का कोरॉबरेशन भी हो सकता है। ठीक है, इस स्टेटमेंट को एज एन एविडेंस यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि आपने पुलिस के सामने नहीं कहा। यहाँ जिस स्टेटमेंट की बात हो रही है खासतौर पे, द स्टेटमेंट दैट इज बीइंग रेफर्ड टू इन दिस सेक्शन
इज स्पेसिफिकली द स्टेटमेंट गिवन टू पुलिस ओके ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन। दो बातें हैं, अन्वेषण के दौरान और वो बयान जो आपने पुलिस को दिया, ठीक है। तो ग्राम प्रधान को कोई बयान दे दिया है, सरपंच को बयान दे दिया है, पंचनामे में कुछ कह दिया है, तो वो पुलिस को दिया गया बयान नहीं है। दैट स्टेटमेंट इज नॉट गिवन टू द पुलिस, सो दैट स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड एज एन एविडेंस एंड ऑल्सो फॉर कोरॉबरेशन वेरी प्रॉपर्ली। इस बात को जो ध्यान में रखना जरूरी है कि भाई इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन एंड द स्टेटमेंट गिवन टू द पुलिस, दो बातें। अगर भाई इन्वेस्टिगेशन के दौरान नहीं, इन्वेस्टिगेशन के बाहर जाके कोई स्टेटमेंट जो है आपने दिया किसी को, ठीक है, तो उस स्टेटमेंट का यहाँ पर कोरॉबरेशन हो सकता है। बहरहाल अगर आपने पुलिस को दे दिया है कोई स्टेटमेंट, पुलिस के सामने कन्फेस कर दिया है, पुलिस को कुछ बयान दिया है, तो उसका तो यूज़ हो ही नहीं सकता, ठीक है, वो एविडेंस है ही नहीं, उसकी एविडेंशियरी वैल्यू बिल्कुल निल है। ओके, सो एनी स्टेटमेंट दैट इज गिवन टू द पुलिस, दैट स्टेटमेंट cannot be used for corroboration. That particular statement can only be used for contradiction, and that too by the accused. Okay, and in one condition only, if the person is coming as a prosecution witness, and if the prosecution wants to contradict the statement of that particular person, then the prosecution has to take the permission of the court. Okay, पुलिस के अलावा आपने किसी को बयान दिया तो उस बयान का खंडन और उसकी सिद्धि दोनों हो सकती है, और उस बयान को एज एन एविडेंस भी यूज़ किया जा सकता है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट सेक्शन 162 सबसेक्शन 1, ठीक है। ये इन शॉर्ट है सबसेक्शन 1 में जो मेंशन्ड है उसके बारे में, ठीक है। अब आते हैं अगले सबसेक्शन पे। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अप्लाई टू एनी स्टेटमेंट फॉलिंग विद इन द प्रोविजंस ऑफ क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 32, ओके, and to affect the provisions of section 27 of this particular act, the act, which act? Indian Evidence Act, ठीक है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में जो सेक्शन 32 है सब क्लॉज 1 उसका बेसिकली डाइन डिक्लेरेशन की यहाँ बात हो रही है, ठीक है। अब ये डाइन डिक्लेरेशन क्या है, इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 32 क्या है, 27, ये हम डिटेल में अगले वीडियोज़ में जानेंगे। पर यहाँ आप ये जान लो कि भाई सेक्शन 32 क्लॉज 1 इंडियन एविडेंस एक्ट या सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, तो इन दोनों मामलों में ये सेक्शन जो है अप्लाई नहीं करेगा, इस सेक्शन के प्रोविजंस अप्लाई नहीं करेंगे। ओके, वट एवर मैंशन इन दिस सेक्शन, सेक्शन 162, द प्रोविजंस आर नॉट गोइंग टू अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 32 सब क्लॉज 1 एंड सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। अगर इन दोनों धाराओं के तहत कोई स्टेटमेंट है, कोई बयान है, तो वहाँ पर ये सेक्शन अप्लाई नहीं करेगा, इसके प्रोविजंस का उन स्टेटमेंट्स पर कोई असर नहीं होगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट सेक्शन 162 इन शॉर्ट। ओके, बहुत सारे केसेस हैं यहाँ पर, सैकड़ों केसेस हैं एनीवेज। नाउ एक बहुत अहम बात है, इस पर्टिकुलर जो सेक्शन है इसका यूज़, इसका ऑब्जेक्ट क्या है। अभी तो हमने जाना कि सेक्शन 161 जो स्टेटमेंट होता है, जो बयान पुलिस लेती, उसका यूज़ क्या है। अब जो है ये धारा क्यों बनाई गई, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, यूटिलिटी क्या है, पर्पज़ क्या था। तो एक केस है, पहले आप ये जान लें कि ऑब्जेक्ट क्या है। द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेक्शन इज टू प्रोटेक्ट द अक्यूज्ड बोथ अगेंस्ट द ओवरजीलस पुलिस ऑफिसर्स एंड अनट्रूथफुल विटनेसेस। जो झूठे गवाह होते हैं या ओवरजीलस पुलिस ऑफिसर्स, करप्ट पुलिस ऑफिसर्स होते हैं। देखिए भाई, जुडिशरी डज नॉट ट्रस्ट द पुलिस। अभी भी जो समाज हमारा है, जो सिस्टम है, वो उस लेवल पर नहीं गया है कि जुडिशरी पूरी तरह से पुलिस पर भरोसा कर ले। ओके, लॉ ऑलवेज सस्पेक्ट्स द पुलिस, ये बहुत पुराना एक एग्जियम है। तो इस सेक्शन का जो ऑब्जेक्ट है वो यही है कि जो अक्यूज्ड है, भाई ज़रूरी नहीं कि वो मुजरिम हो ही, अभी मुलजिम है, इल्ज़ाम लगाए, ठीक है, जब तक कि उसका जुर्म साबित नहीं होता वो मुजरिम नहीं है। तो अभी क्या है कि ट्रायल चल रहा है, ठीक है, या इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो उसको पुलिस ऑफिसर्स की जो एक कहते हैं ना गलत हरकतें होती हैं, जो ओवर जीलस और करप्ट ऑफिसर्स होते हैं उनसे, और अनट्रूथफुल जो विटनेसेस होते हैं, जो झूठे गवाह होते हैं, उनसे बचाने के लिए सेक्शन इनकॉर्पोरेट किया गया। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेक्शन इज टू प्रोटेक्ट द अक्यूज्ड बोथ अगेंस्ट ओवर जीलस पुलिस ऑफिसर्स एंड अनट्रूथफुल विटनेसेस। नाउ एक केस है, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में, खत्री 4 वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ओके, खत्री चतुर्थ, खत्री द रोमन नंबर वाला जो 4 है वो वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, पुराना केस है, 1981 का केस है, सुप्रीम कोर्ट केस है, पेज नंबर 493। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 162 इन शॉर्ट। हमने ऑब्जेक्ट जाना और इस सेक्शन में है क्या, धारा 161 में दिया गया बयान पुलिस को उसका इस्तेमाल कैसे हो सकता है, एविडेंशियरी वैल्यू बिल्कुल ना के बराबर होती है। ओके,
Any statement made by any person to a police officer in the course of investigation can only be used for the purposes as hereinafter provided and for no other purposes. Okay, at any inquiry or trial in respect of any offense under investigation at the time when such the statement was made. Okay, so this is all about section 162 in short. I hope कुछ तो समझ में आया होगा. Okay, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है, इतना टेक्निकल ये सेक्शन नहीं है. ओके, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है इसका जो एप्लीकेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट, यूटिलिटी बहुत हाई है. जैसा कि मैंने कहा कि कुछ सेक्शंस होते हैं कि उनकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है. ओके, अक्सर जो है पुलिस हैरास करती है, ठीक है, विटनेस को, या जो मतलब अक्यूज़ड होता है, तो उस हैरासमेंट से रोकने के लिए जो है विटनेसेस को, अब विटनेस पर क्या हैरासमेंट, साइन करो, नहीं दो ज़बरदस्ती, तो भाई आप जो है ज़बरदस्ती नहीं कर सकते किसी के ऊपर, ठीक है. ये आर्टिकल 21 के अगेंस्ट, आर्टिकल 20 के भी अगेंस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे मेंशन्ड है. ओके, तो इस तरह की जो गलत हरकतें होती है उससे बचाने के लिए जो है ये सेक्शन इनकॉर्पोरेट किया गया. ख़ास तौर पे ये अक्यूज़ड सेंट्रिक है. ओके, अक्यूज़ड के अधिकारों को जो है कहते हैं ना, प्रोटेक्शन देने के लिए ये सेक्शन इनकॉर्पोरेट किया गया यहाँ पर. सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड वॉचिंग दिस वीडियो. और अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, कुछ भी छूट जा रहा है, एनीथिंग दैट आई एम स्टेटिंग विच इज़ रॉन्ग फैक्चुअली, and if I'm missing out something, I would really love to learn from you guys too. I'm also a learner, a beginner. Okay, मैं कोई मास्टर नहीं हूँ, कोई बहुत बड़ा जज या वकील नहीं हूँ मैं. बहरहाल we are all just students. Okay, we are learning together. Let us learn together, understand the Indian law. कुछ गलत कह रहा हूँ, anything that I'm missing out, leaving out, okay, you can just add, correct me, teach me. Okay, I'm ready to accept, learn, receive, and yes, yeah, thank you.